Hello students, welcome back in our social studies class. Today we are going to continue our second chapter, constitutional design. So today we are going to continue the topic making of the Indian constitution. Yes, of course we studied this topic little bit yesterday. Today we are going to continue this topic with the subtopic of the path to constitution. Constitution के लिए कौन सा रास्ता अपनाया इंडिया ने? So despite all these difficulties, what kind of difficulties? At the time of independence, the India gained a bitter, a very cruel partition, and in this partition nearly 10 lakh people died. Not only we received the bloody partition, but also some of the states are under the princely rule, and the Britishers are not going to clarify in which part they are in future belongs to. So it means the Britishers gave them chance to choose whether India or whether Pakistan or Eastern Pakistan, which is called Bangladesh nowadays, and maybe they take independence. So this is a very dreadful situation in front of India and in front of constitution as well. So despite all these difficulties, there was one big advantage for the makers of the Indian constitution. Unlike South Africa, they do not have to create a consensus about what a democratic India should look like. Much of this consensus had evolved during the freedom struggle. एडवांटेज क्या था? एडवांटेज सबसे मेजर यही था कि एट द टाइम ऑफ freedom, when we receive the freedom, when we gain the freedom, at that time the Britishers left from here. So there is no need to make the constitution for them as well. So our national movement was not merely a struggle against the foreign rule, it was also a struggle to regenerate our country and to transform our society and politics as well. हमारा जो स्ट्रगल था, फ्रीडम स्ट्रगल, वो सिर्फ इसलिए नहीं था कि हमने सिर्फ एक नेशनल मूवमेंट चला रखा था फॉरेन रूल के खिलाफ, बल्कि हमारा स्ट्रगल ऐसा था जिसमें हमने कंट्री को ट्रांसफॉर्म करना शुरू किया था, वापस से रीस्टैब्लिश करना शुरू किया था, उसका सोसाइटी, पॉलिटिकल सिचुएशन सब कुछ ट्रांसफॉर्म करना चाहते थे हम. So there were sharp differences of opinion within the freedom struggle about the path India should take after independence. Clear था कि हम किस रास्ते पे जाएंगे इंडिपेंडेंस के बाद. So such differences exist even today as well. Some basic ideas had come to be accepted by almost everyone. So as far back as in 1928, Motilal Nehru and 8 other Congress leaders. The year 1928, Motilal Nehru and the 8 other Congress leaders drafted a constitution. हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होने की शुरुआत इंडिपेंडेंस के साथ नहीं, बल्कि इंडिपेंडेंस से बहुत पहले ही हो गई थी. In 1931, the resolution at the Karachi session of the Indian National Congress dwelt on how independent India's constitution should look like. 1931 में ही रेजोल्यूशन ले लिया था कराची सेशन में ही कि आफ्टर इंडिपेंडेंस हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कैसा दिखेगा, कैसा होगा. So both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchise. दोनों डॉक्यूमेंट 1928 और 31, इस दोनों डॉक्यूमेंट में एक चीज कमिटेड थी और वो थी यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. इट मींस right to freedom and equality and to protecting the rights of minorities. Universal adult franchise means right to vote, basically. वोटिंग का अधिकार, राइट, हर नागरिकों को, जो भी व्यक्ति 18 साल से ऊपर है उन सभी को इक्वल वोटिंग राइट विदाउट एनी काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन.
So the Constitution of Independence India, thus some basic values were accepted by all leaders much before the constituent assemblies met to deliberate on the constitution. So the familiarity with political institution of colonial rule also helped develop an agreement over the institutional design. The British rule had given voting rights only to a few. एक familiarity थी political institution की colonial rule के समय. It helped in the development in the agreement इंस्टीट्यूशनल डिजाइन के डेवलपमेंट के लिए. ब्रिटिश रूल जो था इसने ऐसा नहीं था कि वोटिंग पावर नहीं दी थी. इन रियलिटी ब्रिटिशर्स आर नॉट डायरेक्टली रूलिंग द कंट्री. डायरेक्ट रूल नहीं कर रहे थे. दे गिवन द वोटिंग राइट्स but they only giving the voting rights for few of the people. So on that basis the British had introduced very weak legislatures. Right? Elections were held in 1937 to provincial legislatures and ministers all over British India. These were not fully democratic governments. Elections हुए थे 1937 में भी provincial legislature के तौर पर, लेकिन in reality ये जो सारा system था इसे fully democratic नहीं कहा जा सकता. But the experience gained by the Indians in the working of the legislative institution, ये मान सकते हैं कि एक तरीके का रास्ता था जिसकी वजह से इंडियंस को भी एक एक्सपीरियंस मिला था कि लेजिस्लेटिव इंस्टीट्यूशन वर्क कैसे करती है, कैसा होना चाहिए एक लेजिस्लेटिव सिस्टम. सो दैट इज व्हाई द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्टेड मेनी इंस्टीट्यूशनल डिटेल्स and procedures from colonial laws like Government of India Act 1935. तो इस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत कुछ अडॉप्ट किया, बहुत सारे इंस्टीट्यूशन से प्रोसीजर्स को अडॉप्ट किया, कॉलोनियल लॉ से भी, जो भी कॉलोनियल हमारा सिस्टम था उससे भी हमने कुछ चीजें अडॉप्ट की, और गवर्नमेंट ने एक एक्ट लॉन्च किया 1935 वाला. सो years of thinking and deliberation on the framework of the constitution had another benefit. कुल मिलाकर के कॉन्स्टिट्यूशन को फ्रेम करने में बहुत लंबा समय लगा. अवर लीडर गेन कॉन्फिडेंस, और इस लंबे समय की वजह से हमारे लीडर्स में भी काफी कॉन्फिडेंस डेवलप हुआ. दे लर्न फ्रॉम अदर कंट्रीज एज वेल बट ऑन अवर ओन टर्म्स. इन्होंने दूसरी कंट्रीज के से भी बहुत कुछ सीखा, उनके कॉन्स्टिट्यूशन से भी बहुत नॉलेज ली. मेनी ऑफ अवर लीडर्स वर इंस्पायर्ड बाय द आइडियल्स ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. बहुत सारे हमारे ऐसे भी लीडर्स थे जो कि काफी इंस्पायर थे फ्रेंच रेवोल्यूशन से. द प्रैक्टिस ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इन ब्रिटेन एंड द बिल ऑफ राइट्स इन द यूएस. जिस तरीके का पार्लियामेंट्री सिस्टम चलता है डेमोक्रेटिक ब्रिटेन में, वहां से भी कुछ नॉलेज गेन की, और जो बिल राइट्स होते हैं इसके बारे में यूएस से. सो द सोशलिस्ट रेवोल्यूशन इन रशिया हैड इंस्पायर्ड मेनी इंडियन. इवन जो सोशलिस्ट रेवोल्यूशन हुआ था रशिया में, उससे भी बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत इंस्पिरेशन मिली इंडियंस को टू थिंक ऑफ शेपिंग अ सिस्टम. कैसे सिस्टम को शेप देना चाहिए सोशल और इकोनॉमिकल इक्वालिटी के साथ. सो येट दे वर नॉट सिंपली इमिटेटिंग व्हाट अदर्स हैड डन. नॉर्मल से शब्दों में हम ये कह रहे हैं कि बहुत कुछ सीखा है इंडिया ने, और कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को भी जो फ्रेम किया था उस सारी लर्निंग के आधार पर किया, लेकिन इमिटेट नहीं किया है. ऐसा नहीं कि उन सबका कॉन्स्टिट्यूशन बस ला करके नकल उतारी है. अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अपने ओन टर्म्स के अकॉर्डिंग बाकी के सारे कॉन्स्टिट्यूशन से डिफरेंट चीजों को अडॉप्ट किया है. सो एट ईच स्टेप दे वर क्वेश्चनिंग. इवन हर स्टेप पर क्वेश्चन भी किया गया था whether these things suited our countries or not. All these factors contributed to the making of the constitution. और ये हर सारा सिस्टम कहीं ना कहीं कंट्रीब्यूट कर रहा है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेम में. नाउ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली. हु देन वर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? दिस इज द बिग क्वेश्चन अराइज हियर. कौन है जिसे हम ये कहें कि दे आर द मेकर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? You will find here very brief sketch of some of the leaders who played an important role in making the constitution. So the drafting of document called the constitution, document की drafting जिसे constitution कहते हैं, was done by an assembly of elected representative.
तो ये ड्राफ्ट किया था उस इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स ने जिन्हें जनता ने इलेक्ट किया, एंड दीज इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स entirely called Constituent Assembly. Election to the Constituent Assembly were held in July 1946. और ये Constituent Assembly के लिए इलेक्शन हेल्ड हुआ था जुलाई 1946 में. फर्स्ट मीटिंग हेल्ड हुई थी 1946 दिसंबर में, एंड सून आफ्टर द कंट्री वाज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान. लेकिन जब ये ड्राफ्ट हो रहा था कॉन्स्टिट्यूशन, तभी बहुत ही जल्द इंडिया और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया इन 1947. On 14th August 1947, India gets separation. So, the Constituent Assembly that wrote the Indian Constitution had 299 members. The Assembly adopted the Constitution on 26 November 1949, but it came into effect on 26 January. लेकिन इस बिटर पार्टीशन की वजह से अब इसके फ्रेमिंग में समय लगा. कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो पूरा एक ड्राफ्टिंग है, 299 इसके टोटल मेंबर रहे. 26 नवंबर 1949 में ड्राफ्टिंग कमेटी बनाई गई, जिन्होंने 3 इयर्स का एक्सटेंशन के बाद फाइनली इस कॉन्स्टिट्यूशन को लॉन्च किया, इफेक्ट में लेकर के आए. और वो समय था जनवरी 1950, 26 जनवरी. और हम तभी से एज अ रिपब्लिक डे इस डे को सेलिब्रेट कर रहे हैं, राइट? एवरी ईयर करते हैं. सो व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूशन मेड बाय दिस असेंबली मोर देन 6 डिकेड्स अगो? तो हम कॉन्स्टिट्यूशन को क्यों एक्सेप्ट कर रहे थे? 6 ईयर से बन रहा था ये कॉन्स्टिट्यूशन. वी हैव ऑलरेडी नोटेड one reason above, that the constitution does not reflect the views of its member alone. पहले भी बोला है कि कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक मेंबर के अपने व्यूज से नहीं चलता, बल्कि इट एक्सप्रेसेस अ ब्रॉड consensus of its time. Many countries of the world have had to rewrite their constitution afresh because the basic rules were not acceptable. हम बात ये कर रहे हैं कि 6 ईयर का लगभग लंबा समय लगा. इन रियलिटी अगर हम देखें तो 3 इयर्स तो लगे ही. केम इन इफेक्ट आया है 26 जनवरी 1950 को. तो इतने लंबे समय में बनने वाला ये कॉन्स्टिट्यूशन जो है, समय समय पर इसमें अमेंडमेंट्स क्यों होते हैं? क्योंकि कुछ रूल्स और रेगुलेशंस ऐसे होते हैं, कुछ पॉलिसीज ऐसी होती हैं जिसमें अकॉर्डिंग टू टाइम पीरियड changes required होते हैं. So the constitution exists as a mere piece of paper. No one actually follow it. और अगर ऐसा नहीं होता तो कॉन्स्टिट्यूशन सिर्फ एक कागज बन के रह जाता, कागज का टुकड़ा बन के रह जाता, कोई इसे फॉलो नहीं करता अगर ये अमेंडमेंट वाला सिस्टम नहीं होता. So the experience of our constitution is different. Over the last half a century, several groups have questioned some provision of the constitution. Even हमारे इंडिया में कॉन्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आने के बाद में लास्ट हाफ सेंचुरी से, पिछले 50 सालों से बहुत सारे ऐसे ग्रुप हैं जिन्होंने कई प्रोविजंस पर क्वेश्चनिंग की है, बट नो लार्ज सोशल ग्रुप और पॉलिटिकल पार्टी हैज एवर क्वेश्चन द लेजिटिमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन. लेकिन किसी ने भी इसकी लेजिटिमेसी पर उंगली नहीं उठाई है. दिस इज एन अनयूजुअल अचीवमेंट ऑफ फॉर एनी कॉन्स्टिट्यूशन. प्रोविजंस पर जरूर क्वेश्चनिंग की गई है, लेकिन एंटायर कॉन्स्टिट्यूशन पर, इसकी लेजिटिमेसी पर किसी ने भी क्वेश्चन नहीं किया है. नाउ द सेकेंड रीजन फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया. दूसरा कारण ये है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो रिप्रेजेंट करती है भारत के लोगों को, उनके सिटीजन को. सो देयर वाज नो यूनिवर्सल इंटरनल फ्रेंचाइज एट दैट टाइम, so that constituent assembly could not have been chosen directly by all the people of India. It was elected mainly by the members of the existing provincial legislature. क्या कह रहा है बेटा? सेकेंड रीजन ये है समय समय पर इसमें सुधार लाने का या चेंजेस लाने का, क्योंकि जिस समय ये कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो रहा था उस समय में यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का सिस्टम नहीं था.
इसकी वजह से सबको इक्वल वोटिंग राइट नहीं थे। तो ये जो कॉन्स्टिट्यूशन उस समय बनाया गया, उस समय सिर्फ जो भी इलेक्टेड मेंबर्स थे प्रोविंशियल लेजिस्लेचर के, उनकी मदद से बनाया गया। अब क्योंकि पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और सबके अपने अपने व्यूज होते हैं, इसीलिए समय समय पर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू ओपिनियन, अकॉर्डिंग टू डिफरेंशिएटिव व्यूज, इट इज नेसेसरी to change the constitution. So this ensured a fair geographical share of the members from all the regions. इससे क्लियर हो जाता है, इससे इंश्योरिटी मिल जाती है कि सभी लोगों को इक्वल इंपॉर्टेंस मिलता है नेशन में। द असेंबली वॉज डोमिनेटेड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस। वैसे भी उस समय की असेंबली इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा डोमिनेटेड थी। द पार्टी दैट लेड इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, ये वही पार्टी है जिसने इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल लड़ा था। बट द कांग्रेस itself included a variety of political group and opinion. लेकिन इस अपने ग्रुप में, इस कांग्रेस में भी वेराइटी ऑफ अदर ग्रुप थे, अदर पॉलिटिकल ग्रुप्स थे, उनके डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस थे। सो द असेंबली हैड मेनी मेंबर्स हु डिड नॉट एग्री विद द कांग्रेस। कुछ ऐसे भी लोग थे इस ग्रुप में जो खुद कांग्रेस को नहीं मानते थे, एग्री नहीं होते थे उनके साथ। सो इन सोशल टर्म्स टू द असेंबली रिप्रेजेंटेड मेंबर्स फ्रॉम डिफरेंट लैंग्वेज। वहीं सोशल तौर पे अगर हम देखें तो डिफरेंट लैंग्वेजेस से बिलोंग करने वाले ग्रुप भी थे, डिफरेंट कास्ट से, क्लासेस से, रिलीजन और ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट था। सो इवन इफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वाज इलेक्टेड बाय यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, इट्स कंपोजिशन वुड नॉट हैव बीन वेरी डिफिकल्ट, राइट? Now finally, the manner in which the Constituent Assembly worked gives sanctity to the Constitution. The Constituent Assembly worked in a systematic, open and consensual manner. हमेशा एक कॉन्स्टिट्यूशन को, एक कॉन्स्टिट्यूएंटी को ओपन तरीके से, सिस्टमैटिक ऑर्डर में वर्क करना चाहिए। First, some basic principles were added, were decided and agreed upon. Then, drafting committee chaired by Dr. B.R. Ambedkar prepared a draft. तो इस सारे सिस्टम में क्या हुआ? सिस्टमैटिक ऑर्डर में सारा सिस्टम लिखा गया। पहले प्रिंसिपल डिसाइड किए गए, सबको उस पर एग्री किया गया और उसके बाद में उन सभी प्रिंसिपल्स को ड्राफ्ट किया गया। किसके द्वारा? ड्राफ्टिंग कमेटी के द्वारा, जिसके चेयरपर्सन थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। तो इन्होंने, the all credit goes to him. He drafted the Constitution of India for discussion. So several rounds of through discussion took place. अब ऐसा नहीं था, बहुत राउंड चले डिस्कशन के, तब जाकर के कहीं कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट हो पाया। क्लॉजेस भी बनाए गए। बाय क्लॉजेस मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसिडर्ड। ऐसे क्लॉज बनाए गए कि अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, अकॉर्डिंग टू टाइम चेंजेस अमेंडमेंट किया जा सकता है, इस नियम में सुधार हो सकता है। सो द मेंबर्स डेलिब्रेटेड फॉर 114 days spread over 3 years. Every document presented and every word spoken in the Constituent Assembly. किस तरीके से बनाए पता है आपको अपना कॉन्स्टिट्यूशन? 114 दिन के लिए, 114 डेज के लिए सभी मेंबर्स जो थे ड्राफ्टिंग कमेटी के 3 years तक चारों तरफ फैल गए देश में, हर तरीके के मुद्दों को लिया, हर तरीके के बातों को शामिल किया, उस पर बहुत लंबी डिबेट चली असेंबली में। उस समय असेंबली रिकॉर्ड की गई, प्रिजर्व की गई। दीज आर कॉल्ड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। When printed, these debates are 12 bulky volumes. These debates provide the rationale behind every provision of the Constitution. तो ये जो भी डिबेट्स चली, इन सबको 12 बल्कि वॉल्यूम में तैयार किया गया, लिखा गया। These are used to interpret the meaning of Constitution. ऐसा क्यों किया गया? ताकि अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझ आ सके। तो इतना सारा लंबा प्रोसेस होने के बाद में हमारे इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ। Now let's change the topic. Guiding values of the Indian Constitution. In this chapter, we shall study the exact provision of the Constitution, right, on different subjects.
At this stage, let us begin by understanding the overall philosophy of what our constitution is all about. अब यहाँ जरूरत आ गई ये समझने की कि सारी फिलोसॉफी क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है क्या. We can do this in two ways. दो तरीके से कर सकते हैं हम. We can understand it by reading the views of some of our major leaders on our constitution. But it is equally important to read what the constitution says about its own philosophy. या तो हम नेताओं के विचार सुने कि वो क्या चाहते थे, या फिर हम कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ लें. दिस इज व्हाट द प्रीएम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन डज. यही होता है प्रीएम्बल में. लेट अस टर्न टू दीज वन बाय वन. फर्स्ट, द ड्रीम एंड द प्रॉमिस. Some of you may have noticed a name missing from the sketches of the makers of the constitution. आपने नोटिस किया होगा, जब आपने देखा होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन बनने में उस समय जो राष्ट्रपिता थे महात्मा गांधी, उनका तो नाम ही नहीं है. He was not a member of Constituent Assembly. Yet there were many members who followed his vision years ago. Writing in his magazine Young India in 1931, he had spelled out what he wanted the Constitution to do. लेकिन इन्होंने अपनी बुक जो कि 1931 में पब्लिश करवाई थी, यंग इंडिया, उसमें उन्होंने साफ साफ मेंशन किया कि वो क्या चाहते हैं. See, I shall strive of a constitution which will release India from all thraldom and patronage. मैं चाहता हूँ कि मेरा देश, मैं ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहता हूँ जिसमें भारत को आज़ादी मिल जाए हर तरह के पेट्रोनेज से, हर तरह के थ्रैल्डम से. So I still work for an India in which the poorest shall feel that it is their country. मैं वहां पर वर्क करना चाहता हूँ, उस इंडिया में जहां पर गरीब भी महसूस कर सके कि देश उसका है. In whose making they have an affecting voice. An Indian in which there shall be no high class and no low class of people. एक ऐसा इंडिया जिसमें कोई अपर क्लास या लोअर क्लास नहीं हो. An India in which all communities shall live in perfect harmony. एक ऐसा भारत जिसमें सारी कम्युनिटी भाईचारे से रहें, शांति से रहें. There can be no room in such an India for the curse of untouchability. कोई भी ऐसा एरिया नहीं होना चाहिए, ऐसा कोई भी स्थिति नहीं होनी चाहिए जिसमें अनटचेबिलिटी को बढ़ावा मिले. और कर्स ऑफ इंटॉक्सिकेटिंग ड्रिंक्स एंड ड्रग्स. वुमेन विल एंजॉय द सेम राइट्स एज मैन एंड आई शैल बी सेटिस्फाइड विद नथिंग. गांधी जी ने कहा था कि अगर ऐसा भारत तैयार होगा, अगर कॉन्स्टिट्यूशन इन सब की चीजें, ये सारी बातें कॉन्स्टिट्यूशन में शामिल होंगी, तो बस यही चाहता हूं मैं सेटिस्फाई हो जाऊंगा, मुझे और कुछ नहीं चाहिए. क्या क्या चाहा इन्होंने? कि अमीरी गरीबी का भेदभाव ना हो, नशे का जो एक बुरा प्रकोप है वो भारत पे ना आए, वुमेन्स को भी इक्वल राइट्स मिले. और अगर ये सब मिलता है तो ऑफ कोर्स आई एम वेरी हैप्पी, आई एम satisfied. So this dream of an India that has eliminated inequality was shared by Dr. Ambedkar, who played a key role in the making of the constitution, but he had a different understanding of how inequalities could be removed. अब ये जो सपना था ये गांधी जी का था कि एलिमिनेट की जाए इनइक्वालिटी को, लेकिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, जिन्होंने मेजर रोल प्ले किया था कॉन्स्टिट्यूशन के बनने में, इनकी अंडरस्टैंडिंग अलग थी इनइक्वालिटीज पर, और ये जानते थे कि उसे रिमूव कैसे करना है. He often bitterly criticized महात्मा गांधी and his vision. इन्होंने बहुत ही कड़वे तौर पर महात्मा गांधी के विजन को क्रिटिसाइज किया था. In his concluding speech to the Constituent Assembly, he stated his anxiety very clearly. क्या कहा इन्होंने? See, on the 26th January 1950, we are going to enter a life of contradictions. In politics, we will have equality, and a social and economic life, we will have inequality. पॉलिटिक्स में तो हमारे पास इक्वालिटी आ रही है, पर इन रियलिटी सोशल इकोनॉमिक लाइफ में इनइक्वालिटी है. इन पॉलिटिक्स वी विल बी रीऑर्गेनाइजिंग द प्रिंसिपल ऑफ वन मैन वन वोट एंड वन वैल्यू. इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ वी shall by reason of our social and economic structure continue to deny the principle of one man one vote one value. So how long shall we continue to live this life of contradiction? इन्होंने कहा कि पॉलिटिकली तो हम बात कर रहे हैं कि सबको इक्वल राइट मिले,
one person, one vote, one value. It means universal adult franchise. But in reality, the economic structure, the social structure is different. तो इस तरीके के कॉन्ट्राडिक्शनरी जो लाइफ है, इसमें कैसे सर्वाइव कर सकते हैं? हाउ लॉन्ग शैल वी कंटिन्यू टू डिनाई इक्वालिटी इन आवर सोशल एंड इकोनॉमिकल लाइफ? कैसे हम डिनाई कर सकते हैं? भाई है, सोसाइटी में इनइक्वालिटी है, हमारे चाहने भर से सोसाइटी कभी इक्वल नहीं हो जाएगी। आज भी हम देखें तो अमीर बहुत अमीर है और गरीब आज भी गरीब है, लेकिन ये डिपेंड इंडिविजुअली सब पर करता है कि कौन किस तरीके से अपनी गरीबी को दूर करने के लिए काम कर रहा है। तो हम डिनाई नहीं कर सकते हैं सोशल और इकोनॉमिकल लाइफ में इस इक्वालिटी को। So if we continue to deny it for long, we will do only by putting our political democracy in peril. और अगर हम कंटिन्यूसली चाहते हैं कि हम इस बात को डिनाई करें, तो हमें अपनी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी को ही झूठा साबित करना होगा। So hope you guys understand both the dreams, both the conversation of B.R. Ambedkar and Mahatma Gandhi as well. Finally, let us turn to Jawaharlal Nehru. He was also a prominent leader at that time, became the Prime Minister of India when we got the freedom, right? So according to Jawaharlal Nehru, he giving his famous speech to the Constituent Assembly at the stroke of midnight of on 15th August 1947. What he say? Long years ago we made a tryst with destiny, and how the times comes when we shall redeem our pledge, not wholly or in full measures, but very substantially at the stroke of the midnight hour. When the world sleeps, India will awake to life and freedom. इन्होंने कहा कि बहुत लंबा समय लगा डेस्टिनी को, भाग्य को बदलने में, एंड नाउ द टाइम कम्स, और अब वो समय आ गया है जब हमें अपनी प्रतिज्ञा को रिडीम करना होगा। हालांकि पूरी तरीके पे तो हम रिडीम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हाँ सब्सटेंशनली आधी रात को हम एक स्ट्रोक जरूर ले रहे हैं। जब सारा विश्व सो रहा है तब इंडिया जगा हुआ है जीवन के लिए, आजादी के लिए। अ मोमेंट कम्स which comes but rarely in history when we step out from the old to the new. वो क्षण आ गया है, देरी से आया है लेकिन आ गया है, जब हम पुराने से नए की तरफ जाएंगे। When an age ends and when the soul of a nation long suppressed finds utterance. अब नेशन का जो सोल था जिसे बहुत दबाया गया, अब वो उभर के आ रहा है। It is fitting that at the solemn moment we take the pledge of dedication to the service of India and her people and to the still large cause of humanity. Right? क्या कह रहे हैं नेहरू जी कि अब वो समय आ गया है कि अब हमें प्रतिज्ञा करनी होगी, डेडिकेशन के साथ सर्विस देनी होगी। किसके प्रति डेडिकेशन? अपने देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति और मानवता के प्रति। तो फ्रीडम एंड पावर ब्रिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, आजादी और शक्ति रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर के आती है। द रिस्पॉन्सिबिलिटी रेस्ट अपॉन दिस असेंबली, अ सोवेरेन बॉडी representing the sovereign people of India. Before the birth of freedom, we have endured all the pains of labor, and our hearts are heavy with the memory of this sorrow. Some of those pains continue even now. Nevertheless, the past is over, and it is the future that beckons to us now. Freedom और power जो है एक responsibility होती है। Responsibility किस पर है? सारी असेंबली पर, जो कि एक सोवेरेन बॉडी है। तो जब तक फ्रीडम की शुरुआत नहीं हुई थी, तब तक जब तक हमने फ्रीडम हासिल नहीं किया था, बहुत दर्द, बहुत परेशानियां, बहुत हर्ट ब्रेकिंग हमने झेला है। लेकिन वो सब बातें पास्ट की थी। अब हम सिर्फ फ्यूचर के बारे में सोचेंगे। दैट फ्यूचर इज नॉट वन ऑफ द ईज or resting, but of incessant striving, so that we may fulfill the pledge we have so often taken out, the one
we shall take today. The service of India means the service of the millions who suffer. फ्यूचर एक ऐसा फ्यूचर जो स्ट्राइव करेगा, याद दिलाएगा हमारी वो प्लेज जिसमें हमने सबके लिए काम करने की बात की है. एक ऐसी सर्विस जो इंडिया के लिए नहीं बल्कि इंडिया के जो लाखों सफरिंग पीपल्स हैं उनके लिए करना है. इट मीन्स द एंडिंग ऑफ पॉवर्टी एंड इग्नोरेंस एंड डिजीजेस एंड इनइक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी. पॉवर्टी दूर करनी है, बीमारियां खत्म करनी है, सबको इक्वालिटी देनी है अपॉर्चुनिटी की. द एम्बिशन ऑफ द ग्रेटेस्ट मैन ऑफ आवर जनरेशन हैज बीन टू वाइप एवरी टीयर फ्रॉम एवरी आई. That may be beyond us, but as long as there are tears and suffering, so long our work will not be over. लंबे समय तक हमारा काम खत्म नहीं होगा क्योंकि बहुत दुख है, बहुत परेशानी है और उसको कम करने में बहुत समय लगेगा. So students, hope you guys understand the entire term well. In my next video, I am going to continue with philosophy of the Constitution and also I will discuss about the preamble of the Constitution and also explain all the preamble. What is justice, what is liberty, what is equality, fraternity to us, and what are the rights and duties given to us. How the institutional design frame for running the government. This entire thing I will discuss in my next video. Till then, thank you and have a nice day.